Hello traders, welcome to the pre-market analysis of Nifty 50 for 8th of January 2025. Now, currently what we need to understand here is market was totally sideways. Nifty 50, Bank Nifty, Sensex, Fin Nifty, everything was sideways. There is a very poor rumor out there, maybe a rumor, maybe the reality, who knows, that there is going to be a virus outbreak. There is a virus outbreak from China and it is upcoming in India. So because of that, there is a lot of indecision in the markets. We're not able to see a directional movement. Yesterday we had a conversation about directional and non-directional movement. We buyers who are buying in the market, we prefer the movement of directions. We like directional markets, not non-directional markets, because then the problem comes of indecision, imbalances. These are the terms which I'll be explaining further in my videos. Do not worry. You will be properly be familiar regarding the idea of smart money, the typical words, the terms, and everything. Don't worry. Now, look at the market. So this is a 15-minute time frame chart of Nifty 50. Here we are able to see a lot of stuff. First, we need to understand what and when market did whatever. So currently, market started with a gap up. Understand every small stuff here. Market started with a gap up around 23,694. It went up. First 15 minute, it was an upside movement. Then we saw the creation of our today's high, which was around 23,795. It was today's high. And here the market took a U-turn, not a U-turn, basically a steep turn. Market fell from here. Now, after falling from here, we need to understand why and what everything happened. We have to understand सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है regarding the completion of our idea. Completion is basically to understand how we can trade in a market like this, especially in a market like this, how we can trade. Now look here. Here what happens? Here the market showed a lot of consolidation before. Market showed a lot of consolidation before. Yesterday when we were also trading, I was trading with my live batch. We were discussing about how and when a person can enter the other side in the market. So for that we drew a Fibonacci retracement. When we drew the Fibonacci retracement, the 0.618 mark was here. The 0.618 mark came here और इसके आने के बाद we had a proper conversation जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो कि मार्केट कहाँ तक एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है. तो मार्केट के पास एक 0.618 यहाँ पे लेवल बना हुआ था. अगर आप लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने नहीं आता है देन डू नॉट वरी, वील बी टॉकिंग अबाउट इट मोर फर्दर ऑन. हम इसके बारे में बात करते रहेंगे. और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और सीखना है तो अगेन वी हैव कोर्सेज फॉर दैट. डोंट वरी, कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग हियर. ना अब मार्केट में क्या होता है, ये जो सेम लाइन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं 0.618, और मैंने नीचे से ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, राइट. तो इसलिए मैंने यहाँ पे इससे इधर क्रिएट करा. और मेरे लिए अब क्या सिचुएशन था कि अगर उसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू करता, अगर 23,800 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू करता तो मैं इस जगह पर जाकर के बुलिश हो जाता और मैं यहाँ पे जाके बाइंग करता. बाइंग इसलिए करता बिकॉज मेरे सामने एक फेयर वैल्यू गैप है. यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है. फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये भी मैं प्रॉपर्ली आपके सामने डिस्कस करूंगा. डोंट वरी, अभी वर्ड्स को सुनते रहो, एक अननोन गेम की तरह सुनो जो मैं बोल रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. अगर समझ में नहीं आ रहे फिर भी सुनते रहो. बस योर जॉब इज टू लिसन टू वट एवर आई एम सेइंग, ओके. एंड डू नॉट ट्रेड राइट नाउ, जस्ट ऑब्जर्व. Your idea is to observe. My idea is to give you the analysis. Now, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्यों क्रिएट हो रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं विक. सबको पता है दिस इज अ विक. इस विक के नीचे यहाँ पे मार्केट ने कोई भी, यहाँ पे पूरा इम्बैलेंसेस क्रिएटेड है. यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं हुआ था. इसके ऊपर भी पूरा इम्बैलेंसेस क्रिएटेड है. तो मार्केट अगर 23,800 को तोड़ के जाएगा तो यहाँ पे हमें प्रॉपर मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड में. ना अंडरस्टैंड. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज के दिन में. आज के दिन में जो हमने कल क्रिएट करके रखा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.618 वाला मार्क, विच वॉज 23,800 के मार्क को मार्केट ने नहीं तोड़ा. अगर उसको तोड़ के जाता तो शायद हम लोग मार्केट में कॉल साइड की तरफ जा सकते थे. मार्केट ने पूरे दिन क्या किया, इस रेंज में मार्केट रह गया. स्टार्टिंग में वॉलेटिलिटी थी. आई सजेस्ट पीपल टू नॉट ट्रेड, नॉट बाय इन अ मार्केट. 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम, फर्स्ट 15 मिनट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट 15 मिनट में आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो. एंड आफ्टर 1 आवर यू आर रेडी
टू ट्रेड। इस जगह पे भी यही काम हुआ था। फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट ने थोड़ा झांसा दिया, उसके ऊपर मार्केट गया, ऑब्वियसली कंफर्मेशन नहीं दिया। फिर 23,800 का अगर आपको मार्क नहीं पता होता तो आप यहाँ पे फंस जाते। अगर आप वहाँ पे आपको नहीं पता होता कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.618 मार्क बना हुआ है, तो उस जगह पे आपको लगता भाई तो मार्केट तो अपसाइड जा रहा है, और मार्केट वहीं से एक पुश ले लिया डाउन साइड पर। कोई भी एक कैंडल के बलबूते आप कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम में फॉलो करता हूँ, ये टाइम फ्रेम को मैं फॉलो करता हूँ, मैं ट्रस्टेड है मेरे लिए, मैं इससे नीचे नहीं जाता हूँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग 1 मिनट के बारे में बोलते हैं, 2 मिनट के बारे, 3 मिनट के बारे में, 5 मिनट के बारे में। आई डोंट केयर, आई एम अ 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला पर्सन, एंड आई फील दैट दिस गिव्स मी द आइडिया ऑफ वॉट एंड वेन आई शुड ट्रेड नाउ, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन हु ट्रेड्स 30 times a day. आई ट्रेड ओनली वन ट्रेड इन 3-4 days, और मेरे को उसमें महीना का काम निकल जाता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। नाउ अंडरस्टैंड, मार्केट में क्या होता है, 23,000 ब्रेक नहीं हो पाता है, नीचे आ जाता हो। एक जब भी एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वो रजिस्टेंस बन जाता है, और जब एक रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ये मैं कई बार बोलूँगा मेरे आने वाले वीडियोस में, आपको ये बहुत रटा जाएगा, ये रट लोगे आप जो मैं बोलने वाला हूँ। जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो आपके लिए रजिस्टेंस बन जाता है, और जब एक रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपके लिए वो सपोर्ट बन जाता है, राइट। अब ये रजिस्टेंस क्लियरली बना हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाता तो ये क्या बन जाता, एग्जैक्टली सपोर्ट। अगर ये टूट जाता तो ये सपोर्ट बन जाता, लेकिन वो टूटा नहीं, तो हमारे लिए कंटिन्यू रेजिस्टेंस है। मैंने कल भी एक बात आपको बताया था, यहाँ पे हमेशा हमेशा यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी होगी, और रेजिस्टेंस के ऊपर जो रहेगा हमेशा सेल साइड लिक्विडिटी रहेगा, और आपके बाइंग जो आपका सपोर्ट है उसके नीचे जो रहेगा हमेशा वो बाई साइड लिक्विडिटी रहेगा। हमेशा समझने की कोशिश करना, इधर बाई साइड लिक्विडिटी, इधर सेल साइड लिक्विडिटी। ये आप बार बार समझो, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, और अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं होने लगी, यहाँ पे बायर्स आ गए, अगर यहाँ पे बायर्स आ गए, तो ये जो आपका सेल साइड लिक्विडिटी है, जो आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो बन जाएगा सपोर्ट, और ये आपका फिर बाय साइड लिक्विडिटी बन जाएगा। और यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो सेल कर रहा था मार्केट में। यहाँ बायर्स घुस गए नए नए, यहाँ पे हमें डिमांड्स दिखने लगा, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय ऑर्डर्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे प्रॉपर्ली हमने देखने को मिल चुका है 23,800 वाला मार्क, ये क्लियर होना चाहिए। कल के मार्केट के लिए भी बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट लाइन है, रजिस्टेंस है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब डाउन साइड में फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे को ऐसा लग रहा है मार्केट में एक प्रॉपर, आप देख रहे हो कि लोअर हाई का फॉर्मेशन भी हुआ है, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन 23,500 जैसा मैंने कल डिस्कस करा था, ये एक रेंज है, इसके बीच में बाइंग मत करना, इसके बीच में यू शुड नॉट बी द वन टू बाई। If you buy in between that, it is going to be a massacre. If you buy in between that, it is going to be a massacre, because market में कोई भी साइड में एक मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। अब जब ऐसा नहीं हो रहा है तो एक फैक्टर प्ले करता है जिसको बोलते हैं टाइम फैक्टर। जब टाइम फैक्टर प्ले करता है तो वहाँ पे होता है थीटा डीके। थीटा डीके क्या होता है, मेरे आने वाले आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। अब थीटा डीके के कारण क्या होता है, सेलर्स लोग को फायदा होता है, बायर्स को फायदा नहीं होता है। फॉर इन ऑर्डर टू मेक ourselves जो बाय मार्केट में कर रहे हैं, इफ यू आर बाइंग इन द मार्केट, इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट, यू हैव टू फाइंड अ ट्रेंड, डायरेक्शंस, यू हैव टू फाइंड प्रॉपर वॉल्यूम। और अगर आइदर साइड कोई वॉल्यूम नहीं है, या आइदर साइड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो उसके कारण आपको कभी भी वो सोच करके आपको कभी भी मार्केट में एंटर नहीं करना है। योर आइडिया शुड बी टू फाइंड फेयर वैल्यू गैप्स। अब ये जो मेरा नो ट्रेडिंग जोन है 23,500 एंड 23,800 का, 23,500 एंड 23,800 का, ये 300 पॉइंट में आप बाइंग मत करना। रीजनिंग यहाँ पे क्या होने वाला है, बिकॉज इसके बीच में बहुत चॉपीनेस है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक में अपने एकदम खतरनाक गाड़ी को चलाओगे तो उसमें स्क्रैच आ जाएगा, जैसा मैं कई बार अपने लाइव सेशंस में बोलता हूँ। अब इस जगह पे हम लोग नहीं करने वाले वो काम। इसके ऊपर अगर यू आर अ पर्सन हु इज़ लाइक एन इंट्राडे ट्रेडर, आपका काम ही है इंट्राडे ट्रेड करके पैसा कमाना है, एंड देन यू आर बाइंग ब्रेड्स with that, then you have to understand कि आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, which is 23,800। अदरवाइज 23,800 के ऊपर भी ट्रेड मत करना, वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक थ्रू दिस प्रीमियम जोन। ये जो प्रीमियम जोन दिख रहा है, जो हमारा हाई बना था 24,200 का, 24,200 के हाई को ब्रेक करने का वेट कर सकते हो आप लोग। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर एक फेयर वैल्यू गैप है, एंड दैट फेयर वैल्यू गैप इज ऑफ 800 पॉइंट्स। 25,000 तक एक फेयर वैल्यू गैप है। उस फेयर वैल्यू गैप को आप अगर कवर करोगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू योर 5
इंट्राडे ट्रेड्स, अगर आप 5 दिन ट्रेड नहीं कर रहे हो, 6 दिन ट्रेड नहीं कर रहे हो, इफ उस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, बीन वेटिंग ऑल योर 5 days फॉर दैट वन सिंगल ट्रेड, वन सिंगल डे, देन यू विल बी मेकिंग टन्स ऑफ मनी. बट वो आप अगर आप नहीं करोगे, आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग इज एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ 23,300 800 के ऊपर आप सोच सकते हो मार्केट में बाई करने का. अदरवाइज, और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या होता है, 23,500 के नीचे, 23,500 के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे सिंपली एक ट्रेड है. अब मेरे स्क्रीन पे एक बार आप देखोगे, आपको समझ में आएगा. मैं थोड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक बार आपको दिखा देता हूँ. आपके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे और एक बार हम लोग इस जोन को देखेंगे. राइट, ये जोन जो बेसिकली है, यहाँ पे थोड़ा सा, इस जगह पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे होप्स देता है, ये जोन थोड़ा हमें होप देता है. अदरवाइज 23,500 एंड 24,000 के बीच का ये जोन जो है, जो रेंज है, रेंज बाउंड मार्केट है, ये कितने दिनों से बस हमें परेशान कर रहा है. ये रेंज को टूटने का आप वेट करो और इसके बाद मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना निफ्टी 50 में स्पेसिफिकली. आप देख लो, आपका ये रेंज है. अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमेशा देखोगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा जो कभी भी एक नॉर्मल इंसान शॉर्टर टाइम फ्रेम पे नहीं देख सकता है. एंड दिस इज एसेंशियली वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में हमेशा मार्केट को देखो. ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तब जब आपके सामने मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है. इससे हमें ये पता चल रहा है, पहली बात, हमें 23,500 और 24,000 के बीच में ट्रेड नहीं करना है अगर हम थोड़ा और सोच के ट्रेड करें. अदरवाइज अगर कोई इंसान इंट्राडे ट्रेड करता है, एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रेड ईच एंड एवरी डे, तो आप 23,800 के ऊपर का ब्रेक का वेट कर सकते हो. एंड आई विल फर्मली टेल यू टू नॉट ट्रेड इन बिटवीन 23,500 एंड 23,800. ये जो रेंज है, ये बहुत चॉपी रीजन है. यहाँ पे आपको थीटा डिके का बहुत बड़ा थपेड़ा पड़ने वाला है. सो डू नॉट ट्रेड इन दैट डायरेक्शन. अब मार्केट में आपको 3 चीज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है फॉर बायर्स. फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी तब मिलेगा जब आपको डायरेक्शंस देखने को मिलेगा, जब आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देखने को मिलेंगे. और अगर ये सब आपको नहीं मिल पा रहा है तो दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में वॉल्यूम बहुत होना चाहिए. अगर वॉल्यूम नहीं है, आपका विक्स, इंडिया विक्स जो होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बिल्कुल ही ताकत नहीं है, तो फिर ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है. मार्केट आप यहाँ पे खरीदोगे, ऊपर जाएगा, फिर वहीं पे आ जाएगा, आपका थीटा डीके हो जाएगा आपके बाइंग प्राइस पे. मतलब जितने पे आपने बाई किया था जिस जगह पे, उसी जगह पे जब मार्केट दोबारा आएगा तो आपका जो प्रीमियम रहेगा उसने 10% अपना वैल्यू लूज कर चुका होगा. सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इन ऑर्डर टू ट्रेड, इन ऑर्डर टू बी अ बायर इन दिस मार्केट, यू हैव टू बी द मोस्ट पेशेंट पर्सन. सेलर्स के लिए, द सेलर्स शुड बी वेरी मच अलर्ट. आपका जो हैप्पी हनीमून पीरियड चल रहा है 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच में, ये अगर खत्म होता है तो पेशेंटली प्राइस एक्शन के क्रिएट होने का वेट करना. वंस यू आर वेरी मच कंफर्म्ड कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट हो गया और कंसोलिडेशन पीरियड आने वाला है, देन ओनली सेल. बिकॉज आइदर साइड्स में, ऊपर में आपको वहाँ प्रॉपरली बाई साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा, नीचे में सेल साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा. अगर आप स्ट्रैडल सेल करके बैठे हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा है तो. और अगर आपने नेकेड सेलिंग करा हुआ है तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि उस जगह पे आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है. बिकॉज मार्केट आइदर साइड मूवमेंट आ चुका है, जा सकता है. न्यूज़ बहुत अच्छे ख़राब नहीं है, बजट आने वाला है, लेकिन यहाँ पे वायरसेस भी हैं, यहाँ पे कई सारे रीजनिंग्स हैं जिसके कारण मार्केट एक इनडिसीजन ला सकता है, आइदर साइड मूवमेंट दे सकता है. दिस इज़ वेरी मच क्लियर. आई होप यू गाइज कुड अंडरस्टैंड मी. ऐसे ऐसे मैं कई वीडियोस लाते रहूँगा. ये सिंपली निफ्टी 50 के बारे में था. आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोस रिगार्डिंग साइकोलॉजी. आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोस रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ मार्केट, हाउ मार्केट में आप ईजी मनी तो कभी नहीं बना सकते हो, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली अंडरस्टैंड द मार्केट, और उससे आप एकदम स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में पैसे बना सकते हो. आप तेज़ दौड़ने के लिए कैसे धीरे चलना सीख सकते हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो समझना कि मार्केट में अगर आपको बहुत लंबे समय तक चलना है तो आपको बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा. अगर आप बहुत ज़ोर से चलने की कोशिश करोगे तो मार्केट में इतना ट्रैफिक होता है कि आपका जैसा भी कार हो, जितने भी हॉर्स पावर का कार हो, वो अच्छे से फूटेगा. सो इसी नोट पे हम सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाएंगे. जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे अराउंड, जो भी फॉर्म में है, हमारे अंदर आए. एंड प्लीज़ ब्लेस अस विथ पॉजिटिविटी, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन. Thank you so much, everyone. We'll come up with another pre-market analysis tomorrow on Nifty 50. Thank you so much for today. May Lord Krishna guide us through.